तो आज हम बात करेंगे इंडोकैनाबिनॉइड सिग्नलिंग सिस्टम की। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है न्यूरोमॉड्यूलेशन, राइट? मीनिंग it regulates the activity of the neurons and basically the excitation and inhibition process of the neuron. So it regulates the excitation inhibition process of the neurons. And by regulating this function, it regulates the or controls the physiological process. For example, we are familiar with the memory formation. So it regulates the memory formation. That's very important, right? It also regulates the pain जो हम लोग फील करते हैं पेन, और it also regulates the mood. So it has like very different functions. So I'm just mentioning few of them. So like mood and neuroprotection, right? Neuroprotection. So these are the main function. ओके, सो अगर हम बात करें एंडोकैनाबाइड सिग्नलिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की, तो अगर इसको वर्ड्स को देखें तो एंडो प्लस कैनाबिनॉइड. सो एंडो हियर refers the endogenous. So endogenous meaning it is synthesized inside the brain. So inside the brain, and cannabinoid is a molecule which is lipophilic in the nature. Cannabinoid. So this is a lipophilic molecule. And there are two main lipophilic molecules. So one is the 2-AG and another is the AEA. So 2-AG is 2-arachidonyl glycerol. So 2-arachidonyl glycerol. And AEA is anandamide. Right? So these are the two endocannabinoids that are synthesized inside the brain. So 2-AG and AEE. And out of them, 2-AG is the most prevalent endocannabinoids. That's very important. So because we will talk about 2-AG in more details. So this is the more prevalent endocannabinoids in our brain. Okay, so let's talk a little bit about the history of the cannabinoid, or from which word it is derived, right? So cannabinoid is derived from the plant that is cannabis. So cannabis plant is a medicinal plant, right? This is a medicinal plant. और ये प्लांट भी सिंथेसाइज करता है एक प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज cannabis oil, right? So cannabis oil and cannabinoid looks very similar, right? But cannabis oil is synthesized from cannabis plant, and cannabinoid is synthesized inside the brain. But the interesting thing is cannabinoid and
So this cannabidiol and this cannabinoid both binds to the same receptor. So they both bind to the same receptor. So same receptor means same receptor on the cells inside the brain. So this is the history or the from where its name is derived, cannabinoid. Okay, so let's talk about the signaling system of the endocannabinoid, how it regulates the function of the neurons. So तो आप लोग इससे फैमिलियर होंगे, न्यूरॉन्स, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एंड पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, राइट? सो यहाँ पे हमने ये बनाया है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स जहाँ से ये ग्लूटामेट रिलीज हो रहे हैं। सो ये सब ग्लूटामेट है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये ग्लूटामेट है, राइट? एंड ग्लूटामेट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर and that regulates the excitatory function of the neurons. So basically it regulates the excitation of the neurons. और ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल्स है, तो ग्लूटामेट यहाँ से रिलीज हुआ थ्रू द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल और फिर जाके यहाँ पे ये बाइंड होता है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे, राइट? फिर उसके बाद ये फर्दर सिग्नल प्रोसेस करता है डाउन स्ट्रीम। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें कि ग्लूटामेट की पैकेजिंग यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल में हुई, फिर रिलीज हुआ, फिर यहाँ पे बाइंड हुआ, फिर ये फर्दर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग हुई। सो ये पूरे सीक्वेंस को हम कहते हैं एक्साइटेटरी सिग्नल। मीनिंग न्यूरॉन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट्स में है, मतलब सिग्नल यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये एक्साइटेटरी सिग्नल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये ओवर एक्साइटेशन हो जाता है। तो ओवर एक्साइटेशन को रोकने के लिए भी यहाँ पे एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन्स होते हैं, दैट इज इनहिबिटरी न्यूरॉन। तो ये इनहिबिटरी न्यूरॉन है और इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरॉन, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स। अभी थोड़ा सा हम बेसिक समझ रहे हैं, उसके बाद हम एंडोकैनाबिनॉइड सिग्नलिंग सिस्टम पे आएंगे। तो अगर यहाँ पे सिग्नल बहुत ज़्यादा हो रहा है या ओवर एक्साइटेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरा मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गाबा, GAB। सो दिस इज गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। सो इसका काम क्या होता है कि जो यहाँ पे ग्लूटामेट के थ्रू सिग्नलिंग हुआ है उसको प्रिवेंट करना या स्लो डाउन करना। तो उसके लिए करेगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे जाके बाइंड होंगे रिसेप्टर पे, और फिर ये फर्दर ये सिग्नल यहाँ रिले करेगा और जाके फिर इस सिग्नलिंग को यहाँ पे ये रोक देगा। तो ये इनहिबिटरी सिग्नल हो गया। सो एक्साइटेशन एंड देन इनहिबिशन बैलेंस, इसी को कहते हैं हम एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन बैलेंस, ठीक है? और इसी बैलेंस में एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। तो वो कैसे करता है? तो जो एंडोकैनाबिनॉइड होता है वो पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल में सिंथेसाइज्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल 2AG यहाँ पे सिंथेसाइज्ड हुआ, और नॉर्मली ये सिंथेसाइज कब होता है? जब यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन होता है। तो मान लो कि यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन हो रहा था और 2AG सिंथेसाइज्ड हुआ, तो ये मॉलिक्यूल, चलो हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका ब्लैक कर देते हैं। सो 2AG यहाँ पे ये सिंथेसाइज्ड हुआ। अब चूंकि यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन था तो 2AG क्या होगा? अच्छा, हमने पहले बात की कि 2AG लाइपोफिलिक है, तो लाइपोफिलिक होने की वजह से ये मेम्ब्रेन को बहुत आसानी से क्रॉस कर लेता है। तो ये 2AG यहाँ पे हमारा बाहर आ गया, ठीक है? अब इस क्या करेगा कि ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे जाएगा और उसका जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करेगा। तो इसके रिसेप्टर को हम कहते हैं, ये जो ब्लैक वाला है ये CB
CB1R। तो इसका पूरा नाम है कैनाबिनॉइड टाइप 1 रिसेप्टर्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं CB1R। CB1R कैनाबिनॉइड टाइप 1 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला है ये CB1R रिसेप्टर है जो कि 2AG का है। अच्छा, 2AG जब यहाँ पे बाइंड करेगा तो जो ये सिग्नल इसके थ्रू रिले करेगा वो इनहिबिटरी सिग्नल होगा। और वो क्या इनहिबिट करेगा? जो ग्लूटामेट यहाँ रिलीज हो रहा था। तो जब यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन हुआ तो 2AG यहाँ से रिलीज होकर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में बाइंड किया, फिर वो ग्लूटामेट के रिलीज को रोक देगा। तो जब ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो जो एक्साइटेशन हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा। तो एक फंक्शन इसका ये है 2AG, या आप कह लें इंडोकैनाबिनॉइड सिग्नल सिस्टम का, कि जो एक्साइटेटरी सिग्नल है उसको स्लो डाउन कर देगा। तो इसका एक रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे। ठीक है। अच्छा, इसका एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इनहिबिटरी न्यूरॉन पे। तो ये 2AG क्या कर सकता है कि यहाँ से रिलीज होके यहाँ गया और फिर इस रिसेप्टर पे बाइंड किया। तो ये भी CB1R रिसेप्टर है। अच्छा, यहाँ पे काम क्या होगा? यहाँ पे भी वही सेम काम होगा इनहिबिशन का। तो लेकिन यहाँ पे क्या इनहिबिट करेगा? ये इस इनहिबिटरी ग्लूटामेट और नॉट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को प्रिवेंट करेगा। तो जब इसको रोकेगा तो इसका मतलब जो इसकी जो पावर थी इनहिबिट करने के सिग्नल को, वो अब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उसने एक्साइटेशन को रोका और यहाँ पे इसने एक्साइटेशन को नहीं रोका, मतलब इसने बढ़ने दिया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि जो हमारा इंडोकैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है वो इनहिबिट करता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को, वेदर इट्स अ ग्लूटामेट और GABA, राइट। तो यहाँ भी उसने क्या किया? ग्लूटामेट के रिलीज को रोका है और यहाँ भी उसने जाके GABA को रिलीज को रोका है। अब चूंकि ग्लूटामेट और GABA का अपना अलग अलग फंक्शन होता है तो उसी हिसाब से वो फंक्शन को भी प्रिवेंट करेगा। तो जैसे यहाँ पे ये ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो ग्लूटामेट के फंक्शन को यह प्रिवेंट करेगा, राइट। और यहाँ पे ये GABA के फंक्शन को प्रिवेंट करेगा। अच्छा, इन सब के अलावा एक रिसेप्टर यहाँ भी होता है एस्ट्रोसाइट्स पे। तो ये और इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से 2AG निकला और जाके बाइंड हुआ एस्ट्रोसाइट के रिसेप्टर पे CB1R। वही सेम रिसेप्टर सब पे होता है। तो ये सब दोनों सब CB1R है। यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, CB1R। अच्छा, यहाँ पे क्या करेगा? बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है। यहाँ पे क्या ये ब्लॉक कर रहा था न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को, राइट। यहाँ पे क्या करेगा? इसको प्रमोट करेगा। प्रमोट करेगा इसको। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहते, इसको कहते हैं गिलियोट्रांसमीटर। गिलियोट्रांसमीटर, राइट। So it's very similar to the neurotransmitter, right? Glial so glio means glial cell, that is astrocytes. So glial रिलीज होगा। तो यहाँ पे जब बाइंड हुआ तो इसने क्या किया कि इसको एक्टिवेट किया एस्ट्रोसाइट्स को कि तू और ग्लियो को रिलीज करे। अच्छा, ग्लियो क्या है? ग्लियो एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसमें ग्लूटामेट भी आता है। और मोस्टली ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये एक्साइटरी होता है। तो अब इसको जब एक्टिवेट करेगा तो ये अपना गिलियो रिलीज करेगा। अब ये गिलियो जाके फिर से यहाँ बाइंड करेगा, फिर से इसको एक्साइटेशन स्टेट में या एक्साइट कर देगा पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल्स को। सो यू सी हाउ कॉम्प्लेक्स दिस इंडोकैनाबिनॉइड सिग्नलिंग सिस्टम इज, राइट। सो अगर हम इसको दोबारा से एक बार समराइज करें, सो 2AG यहाँ से निकला क्योंकि लाइपोफिलिक है, बहुत आसानी से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। तो अगर ये प्री सिनेप्टिक पे बाइंड किया तो ग्लूटामेट रिलीज को इनहिबिट करेगा। अगर ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स में जाके बाइंड करता है तो GABA रिलीज को इनहिबिट करेगा। और अगर ये
एस्ट्रोसाइट के रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो ये ग्लियोड ट्रांसमीटर की रिलीज को बढ़ा देगा या एक्टिवेट कर देगा। अब थोड़ा सा हम बात ये करेंगे कि 2AG जो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है वो कैसे होता है, उसका क्या स्टेप्स है। तो इसके एक दो स्टेप्स हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ही जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे ये यहीं पे इसकी सिंथेसिस होती है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएं, जैसे फॉर एग्जांपल से बना ही लेते हैं, फॉर एग्जांपल सो दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, PM, ठीक है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होती है, सो वन ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज कॉल्ड एज PIP2, ठीक है। फॉस्फेटाइड आइनोसिटॉन डाइफॉस्फेट। सो PIP2 से सिंथेसाइज्ड होता है DAG, दैट इज डाई एसाइल ग्लिसरॉल। हम यहाँ इसका नाम लिख देते हैं, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा PLC। सो एंजाइम हो गया हमारा PLC, दैट इज फास्फोलाइपेज C। इसको हम यहाँ लिख देते हैं फास्फोलाइपेज C। अच्छा, DAG से जो बनेगा वो है 2AG, जो इंडोकैनाबिनॉइड है। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है DAGL अल्फा। ये इसका एंजाइम का नाम, इसका फुल फॉर्म है जो, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। डाई एसाइल ग्लिसरॉल अल्फा, नॉट अल्फा, डाई एसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज अल्फा, लाइपेज अल्फा, ठीक है। 2AG बना, तो ऐसे यहाँ पे ये इंडोकैनाबिनॉइड सिंथेसाइज होता है। PIP2 से DAG बना, जब एंजाइम यूज हुआ फास्फोलाइपेज C, एंड देन DAG से 2AG बना, एंजाइम डाइएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज हो गया। I believe that's it. Thank you so much for watching. See you in the next video.